নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ লাইভৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এষ্ট্ৰ টক আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান কাৰণ আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে সাধাৰণতে মানুহে কয় কাল কিসনে দেখা হে কাইলৈ কোনে দেখিছে আমি সদায় কওঁ যে আমি ভৱিষ্যতৰ কথা আমি নাজানো কিন্তু একাংশ এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিয়ে আমি আমাৰ আপোনালোকৰ আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে ভৱিষ্যতৰ কথা অধ্যয়ন কৰে ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু একাংশ এনে ব্যক্তি আছে যিসকলৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচাকৈ আখৰে আখৰে ফলিয়ায় তেনেগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে এষ্ট্ৰ শৰ্মিষ্ঠা আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম কিন্তু তাৰ আগতে কৈ লওঁ শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এষ্ট্ৰ আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বা জ্যোতিষ বিদ্যাৰ বিশ্বত সেন্সেশনৰ সৃষ্টি কৰিছে এগৰাকী বিশিষ্ট জ্যোতিষীয়ে তেখেতৰ সমাহৰ পূৰ্বে শেহতীয়াকৈ ইৰাণত যি যুদ্ধ হৈ আছিল সেই যুদ্ধৰ বিষয়ে তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল আহমেদাবাদৰ হুকাকুল বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কথা আপোনালোকৰ মনত আছে সেই কথা এসপ্তাহৰ পূৰ্বে তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল আৰু তেনেদৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন ষ্টক মাৰ্কেট সোণ ৰূপৰ দাম বঢ়া কমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনে কিছুমান কথা আমি সাধাৰণ মানুহে ধাৰণা কৰিব নোৱাৰা কথা শুদ্ধকৈ সত্যকৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰি আজি বিশ্বৰ বাবে সেন্সেশন হৈ পৰিছে এষ্ট্ৰ শৰ্মিষ্ঠা ma'am welcome to our show warm welcome and we are glad to have you here same here I'm very happy to be here और आपके सारे दर्शकों को नमस्ते जय श्री राम আমাৰ লগত ইয়ং আমাৰ বহুখিনি নতুন জেনাৰেশনৰ জেন জি বুলি ক'ব পাৰো আমাৰ নতুন নৱ প্ৰজন্মৰ বন্ধু আছে যিসকলে আজি এগৰাকী জ্যোতিষীৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব সঁচাকৈ ভৱিষ্যতবাণী সম্ভৱ নে সঁচাকৈ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গণনা কৰি আমি আমাৰ ভৱিষ্যতক বৰ্ণনা কৰিব পৰাটো কিমান দূৰ সম্ভৱ এই সকলো কথা আপোনালোক তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব as we are very privileged to have you here so मौका का फायदा लिया जाए पहले क्योंकि this is our election time and Assam is just coming after 1 month we are election will be held so lot of things we have during this journey we'll talk about your astronomical engineering to this astrology all your journey also your predictions everything we'll discuss but first we'll start with a prediction on our coming election बीजेपी का क्या होगा इस बार इलेक्शन में बीजेपी का तो कल्याण होगा और साथ ही साथ जो है असम का भी बहुत कल्याण होगा आपने मेरे बारे में बहुत पढ़ाई लिखाई करके आए हैं रिसर्च ऑलरेडी मेरा मैगजीन आपके पास है मुझे दिख रहा है तो वहाँ पे भी मैंने बहुत डिटेल में असम के बारे में कवर अप किया है आपने पढ़ा होगा तो असम में इस बार बीजेपी आने वाले हैं इसमें कोई शक ही नहीं इसमें कोई आई मीन देयर इज नो सेकंड थॉट कोई जो है किंतु परंतु थोड़ी डाउट होना ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करने जाते हैं ये सब के लिए जो आप लोग बैठे हैं उनके लिए भी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जब हम देखते हैं तो हम जैसे यहाँ के जो मेन कंटेंडर है हिमंत बिश्व शर्मा जी उनकी कुंडली देखते हैं बीजेपी की कुंडली देखते हैं हम असम की कुंडली देखते हैं कांग्रेस की ऑपोजिशन जो मेन है कांग्रेस की कुंडली देखते हैं ये चारों चीज़ें देखते हैं और फिर पांचवा फिफ्थ चीज़ जो होती है जो जिस दिन इलेक्शन है उस दिन ग्रह तारा का क्या चाल बन रहा है किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है किसके लिए नहीं ये 5 चीज़ों को हम कंसिडर करके फिर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि या दिस पर्सन इज गोइंग टू बी या दिस पार्टी इज गोइंग टू बी सो एनडीए बीजेपी जो भी बोलिए जो असम में तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाले हैं एंड इट विल बी ए क्लीन स्वीप आई विल नॉट से दिस इज क्लीन स्वीप बहुत भारी मेजोरिटी से जीत के आएंगे ऐसा नहीं डिसेंट नंबर ठीक ठाक नंबर से जीत के आएंगे and if you are talking about Assam there is only one person about whom people are very eager to know Dr. Himanta Biswa Sharma will Dr. Himanta Biswa Sharma be the next chief minister again yes he is going to make hat trick यही तो मैं कह रही हूँ कि वो इस बार भी जीत के आएंगे और डिसेंट अच्छे नंबर से जीत के आएंगे मूविंग फॉरवर्ड कविता बिल्कुल छायामणि जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसी हस्ती एक ऐसी एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद जिन्होंने इंजीनियरिंग से शुरू की और अब ग्रहों की भाषा को डिकोड कर रही हैं बॉलीवुड के उतार चढ़ाव हो या फिर वैश्विक राजनीति के उथल पुथल इनकी जो भविष्यवाणियाँ हो इतनी सटीक होती हैं कि बहुत सुर्खियाँ बटोरती हैं और इसी वजह से आज हमारे बीच ये इस मंच में मौजूद हैं
छाया मोनी ने पॉलिटिकल से शुरुआत की। मैं जानना चाहूँगी शर्मिष्ठा जी, 2026 ढाई महीने बीत चुके हैं और हमने 2.5 महीने में बहुत कुछ देख लिया है। भारत के लिए और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कुछ होने वाला है इस साल के अंदर? ये 2026 का पहला 6 महीना 6 मंथ्स दैट इज़ वेरी वेरी टफ। सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं बोलूँगी पूरे विश्व के लिए। और आप लोगों को दिख गया होगा कि अभी क्या विश्व में ईरान और इजराइल में ये लिमिटेड नहीं है, अब ये फैल रहा है। अभी आपको अगर पता हो कि नहीं हो, सबको पता है कि आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले ही अमेरिका ने अपनी टर्की से मतलब टर्की की कुछ जगह से अपनी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बहुत जल्दी पूरा बता दिया, उन लोगों को ऑर्डर दे दिया है। सो पूरा अरब कंट्रीज जो है वहाँ फैल गया है। हमारे प्लेन क्रैशेस और हो रही है, फायर इंसिडेंट हो रही है, सैबोटेजेस हो रही है, अलग अलग टाइप के लोग रास्ते पे आ रहे हैं, कभी यूजीसी के खिलाफ, कभी कुछ कभी कुछ। सो ये जो एक बहुत ही एब्सर्ड चीज़ें चल रही है जो स्टेबल नहीं है, और ये चीज़ जुलाई तक तो पक्का चलती रहेगी। और गवर्नमेंट को, है ना, हर एक गवर्नमेंट को केंद्र में जो सरकार है उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा, बहुत ज़्यादा। पर जुलाई के बाद से आप देखेंगे किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किस तरीके से हर एक चीज़ को टाइटन अप करेंगे। ये चीज़ आपको जुलाई के बाद से धीरे धीरे सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा जी, और सरकार सख्ती भी दिखाएगी जी। वो जुलाई के बाद, फिलहाल तो चलो वो ले रहे सारे चीज़ें। अभी उनका थोड़ा सा हार्ड टाइम है, थोड़ा सा परेशानी और चैलेंजिंग टाइम है, दिस इज आई विल से। पर जुलाई के बाद से तो जो है हमारी होम मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट है, बहुत सख्ती से ये सारी चीज़ों का एक एक करके वो सॉल्व करेंगे। आपने कहा 6 महीने शुरुआती बहुत खतरनाक होने वाले हैं, तो क्या प्राकृतिक आपदा के लिहाज से भी खतरनाक होंगे? जैसे जी, हर तरीके से। भूकंप, फ्लडिंग, इस साल फ्लडिंग थोड़ी ज़्यादा होना है क्योंकि दो बड़े बड़े प्लैनेट जो है जुपिटर और सैटर्न, जो स्लो मूविंग स्लोएस्ट प्लैनेट यही दो है, वो दोनों ही वाटर साइन में बैठे हुए, एक कर्क राशि में और दूसरा मीन राशि में। और जुपिटर जैसा प्लैनेट मतलब बृहस्पति, गुरु जैसा प्लैनेट जब कहीं पे बैठता है, सो बृहस्पति, नाम ही बृहस्पति है, बृहस्पति मतलब सबसे बृहत है, बड़े बिगेस्ट। तो वो जहाँ कहीं पे बैठते हैं इस चीज़ को एक्सपांड करते हैं, फैला देते हैं। तो यहाँ पानी जल की राशि में दो चीज़ें बैठे हुए, तो इस बार बरसात वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी चलती ही रहेगी, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी थोड़ी चलेगी। ठीक है, we will have control on it. মই আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিম যে কেইটামান বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৱিষ্যতবাণী ইয়াতে এইখিনিত এষ্ট্ৰ শৰ্মিষ্ঠাই কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল আগন্তুক নিৰ্বাচনত পুনৰ বিজেপি বিজয়ী হ'ব বুলি তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। আৰু তেওঁ এইটো কোৱা নাই যে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ক্লিন সুইপ বুলি কাৰণে, কিন্তু থাৰ্ড টাইম মানে হেট্ৰিক কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। সেইটো হ'ল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ, কিন্তু অকণমান আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰতো 2026 মাজ ভাগলৈকে মানে জুলাই মাহলৈকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও অলপ বিপদ বা অলপ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি, এনেধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ কিছু চলি থাকিব। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ইতিমধ্যে কবিতাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে যে ভূমিকম্প আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন আমি হ'ব লাগিব, কিন্তু তথাপিও আমি একৰ্ডিং টু হাৰ যে আমি এইটো ফেচ কৰিম আৰু এইটোৰ পৰা আমি সুকলমে ওলাই আহিবলৈও হয়তো সক্ষম হ'ম। Sharmistha ji, it is out of my curiosity. Yes. We are talking about Iran. 6 months back, you predict that Iran's economy will crash. And not 6 months back. 2024 December, I have predicted it. And now you are again saying that now that this will continue till the mid of this 26, means July. 2020, no, I didn't say that. In December 2024, अगर कोई आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो दिसंबर 2024 का वो ट्वीट है कि ईरान विल बी पुश टू वार। यस, दिसंबर ईरान चाहे ना चाहे ईरान को पुश किया जाएगा कि आपको अब वार लड़ना ही पड़ेगा। दे विल नॉट बी एनी अदर, मतलब वहाँ से भागने की कोई तरीका नहीं है। तो ईरान के ऊपर ही हुआ कि बेचारों के ऊपर आया। और ये वार इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना है। 2027 के मिडिल तक ईरान डन एंड डस्टेड, उसकी इकोनॉमी, अब लड़ाई चल रहा है तो साल तो जाना ही, लेकिन मुझे चलेगा कब तक, आपने जो सवाल पूछा है वो 2027 तक तो चलना ही है। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ेगा क्या?
पड़ेगा, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ है। इस बहुत सारे लोग जो है ना, ये जो ईरान में चल रहा है, फिर अरब कंट्रीज के ऊपर भी बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइल फेंका जा रहा है, उसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है। वर्ल्ड वॉर होने में टाइम है, 2029 2030, दैट विल बी द टाइम लाइन। तो अभी तो उसकी कहते हैं ना वार्म अप सिचुएशन। आप अगर देखो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो 6-8 साल चला, थोड़ा करके आगे बढ़ा। सो दिस इज द टाइम गोइंग ऑन, पर अभी नहीं टाइम है। आपने ईरान का जिक्र किया और आपने अपने ट्वीट में कहा था कि ईरान को अपने ही लोगों ने युद्ध में पहुंचाया है, आपने प्रेडिक्ट किया था, बिट्रे करेंगे जी, ट्वीट किया था। तो क्या समझा जाए कि ईरान खत्म हो चुका है या फिर वापसी होगी ईरान की? देखो, कोई कंट्री इस तरीके से तो खत्म नहीं होता कि मैप से गायब हो जाएंगे, ऐसा तो बड़े नहीं स्तर पर नुकसान तो झेलना पड़ता है। वो तो है ही। आप ये तो दिख रहा है, इसमें कोई प्रेडिक्शन करने लायक चीज नहीं। हाँ, तब प्रेडिक्शन करने लायक था जब मैंने कहा 2024 के दिसंबर में कि हाँ ऐसा होना है, और ऐसा हुआ। अब बात जो आपने पूछा है कि है ना, क्या ईरान खत्म ही हो जाएंगे? ईरान, अब कहते हैं ना कि जब आप पूरी तरह मिट्टी में मिल जाते हो, आप फिर उठ के खड़े होते, तो ईरान रिबिल्ड करेगा धीरे धीरे जोड़ के। ईरान की जो ये हार्ड लाइन मुस्लिम उनका शासक थे, तो उन लोगों का जो हार्ड लाइनर जो मुस्लिम इस्लामिक जो कंट्री था, वो अब वो इसका नाम क्या है, मेरे ख्याल से इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, ऐसा कुछ नाम है ईरान का, जो ऑफिशियल नाम है। अब वो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान तो और नहीं रहने वाले हैं। सो 2027 के मिडिल से हम देखेंगे एक नई ईरान उभरते हुए आना। अब ईरान को तो अपने ही लोगों ने क्या किया, क्योंकि रशिया, चाइना, अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, किसी ने बैकअप नहीं दिया है। So that's how. I'm coming to our young friends. Do you have any? আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে, you can ask. नमस्ते शर्मिष्ठा जी। मतलब मैं सीधा ही पूछता हूँ आपसे। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और उसका जो सपना है विकसित भारत 2047, वो आपको क्या लगता है कि कितने दूर तक वो सफल रहेगा? Very nice question. Yes. इसके लिए प्रधानमंत्री का जो ये सपना है, भारत को विकसित बनाना है, मतलब हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और गवर्नमेंट इतनी प्रोग्रेसिव माइंड के चाहिए, दोनों है एक्चुअली। तो इसके लिए मतलब ऐसी जो एक निर्णय लिया है, डिटर्मिनेशन लिया है, बीजेपी सरकार ने ही लिया है, तो सरकार को पहले स्टेबल रहना चाहिए, है ना। तो पहले देखना है कि बीजेपी सरकार कितने दिन रहेंगे, और मेरा कहना है कि बीजेपी सरकार जो है, जो करंट ऑन गोइंग सरकार है, वो जब तक शनि कर्क राशि को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक मुझे जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसमें कोई चेंज, बदलाव नहीं दिखते पार्टी में। तो अगर आप लोग के लिए समझाओ, 2045 2047 तो लगभग एनडीए गवर्नमेंट जैसे तैसे चला लेगा। उसके बाद हो सकता है कुछ जैसे तैसे हो, आई डोंट नो, बट 2045 2047 मोटा मोटी बीजेपी गवर्नमेंट रहने वाली है। अब आती है बातें कि रहने के बाद विकसित होगा कि नहीं। उसके लिए हमारी राहु का महादशा आगे शुरू होगा, और राहु हमारी जो मतलब भारत की राहु का महादशा शुरू होगा, और राहु जो है हमारा एग्जॉल्टेड है हमारी भारत की कुंडली में, और एग्जॉल्टेड है, लग्न में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में है, 5th हाउस के नक्षत्र में है। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डेवलपमेंट, हमारी एनर्जी लेवल, ये सारे चीज़ें ऐसे जगह पे लेके जाएंगे। मैं बोलूँगी 2034 35 से आप देखेंगे इंडिया की एक ऐसे ग्रोथ जहाँ पे हम चीन को पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब हम चीन को रिप्लेस करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब या ऐसा कुछ हम बनने वाले हैं। तो हम तो विकसित भारत 100% बनने वाले। ये क्लैप देने लायक है जो आप कर रहे थे। हम खुद के लिए और देश के विकास के लिए एक क्लैप तो बनता है। तो विश्व गुरु बनने का जो सपना है भारत का, वो 2047 में होगा। वो आप विश्व गुरु के टाइटल दे सकते हो, आई विल नॉट माइंड। वो ठीक है, लेकिन आफ्टर 29 मोदी विल बी रिप्लेस, और नरेंद्र मोदी जी विल कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर। 2029 का जो इलेक्शन है, मुझे लगता है वो लड़ेंगे। बहुत एक चांसेस है 2027 के एंडिंग में। सो देयर इज ए स्मॉल चांस जहाँ पे उनकी हेल्थ की परेशानी, जो क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट है, इंटरनल थोड़ी परेशानी रहेगी, हल्का सा एक चांसेस है। बट मुझे फिर भी लगता है कि ये सब जो भी चैलेंजेस आएंगे, ही विल ओवरकम दिस वन, और वो 2029 में दोबारा इलेक्शन रहेंगे, या फिर फेज 2029 तक तो वो है, दैट इज द एंड। उसके बाद वो फेज बन रहे नहीं बन रहे, दैट इज डिफरेंट इशू। 2029 तक एटलीस्ट वो है। सो ही इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग Prime Minister of
इंडिया। एक सवाल, उसके बाद अमित शाह के पीएम बनने के आसार है या नहीं? नहीं, मुझे योग है अमित कि शाह नहीं? जी पीएम बनते हुए नहीं दिखते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजिकली मुझे एकदम नहीं दिखते, और पर्सनली पूछेंगे तो ही इज द बेस्ट सीएम, बेस्ट होम मिनिस्टर, सॉरी। क्यों, मतलब अमित शाह की कुंडली में कुछ हाँ, ऐसे उनकी सितारे? कुंडली में उस हिसाब से जो एक आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में हाइप होना और समय पे हाइप होना वो अलग बात है। उनकी दशा भुक्ति ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे ऐसा कुछ जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। Any more questions? Yes. Yeah. First of all, a very warm good evening to you, ma'am. So my question is that from many years, we the Northeasterns are being neglected by the whole nation. Actually, what we see in today's generation. So my question will be like, do you see the Northeasterns, mostly the people of Assam, to be rising in the National League? Like, are we going to be like the deciding ones in the nation? Because we have been neglected since very old times. Yes. ट्रू, आई अंडरस्टूड, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, आसाम के बारे में जो है ना, आसाम लॉन्ग टर्म में क्या करेगा और अभी शॉर्ट टर्म में क्या करेगा, इसके लिए हमें आसाम की कुंडली देखिए। जब से आसाम स्टेट फॉर्म हुआ है, एक डेट है जिस डेट को आसाम फॉर्म हुआ है, तो उस डेट के हिसाब से हम आसाम की कुंडली देखते हैं। और आपके पास जो मेरा मैगजीन है, जो एक्चुअली अमेजोन में वो बेस्ट सेलर है डे 1 से, I'm Stellar coming Top. to this magazine also. Yeah, okay. So उसमें एक entire chapter है, which is one whole, 2 paragraphs are there, which is on Assam. तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया कि इस साल आसाम में, आने वाले 1-2 साल में आसाम में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस होने वाली है। डेवलपमेंट की तो बार आने वाली है, मतलब इट्स लाइक फ्लडिंग ऑफ डेवलपमेंट होने वाली है। तो अगर आसाम की सिर्फ मैं बात करूँ, इन द लॉन्ग रन आसाम इज गोइंग टू, मतलब आसाम की काया पलट, मतलब जो कहते हैं न्यू आसाम इज गोइंग टू बी देयर। तो जब डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगी, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से वहाँ तक सफ़र आप लोग की होगी। सो डेफिनेटली इट्स देयर, मतलब इस चीज़ को तो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग आगे इसको मिला सकते हैं। तो ये भी एक प्रेडिक्शन है, टॉप 5 की सूची में असम शामिल होने वाला है, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हमेशा से कहते रहे। टॉप 5 में आने के लिए हल्का सा और टाइम रहेगा, बट ऑल आई एम सेइंग कि हर साल आप देखेंगे उसमें प्रोग्रेस हो रही है। टॉप 5 में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत कुछ जीडीपी में आपके टॉप 5 के हिस्से में आने के लिए मेनी थिंग्स आर देयर, पर जहाँ पे है आप वहाँ से तो हर साल आप प्रोग्रेस करेंगे, इसकी तो मेरी गारंटी है। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী নহয়, তথাপিও বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অথবা অমিত শ্বাহৰ পৰৱৰ্তী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব পাৰে নেকি? His question ये is again. आई अंडरस्टूड दैट ही इज सेइंग कि वो अमित शाह के बदले में अगर आएगा या फिर बीजेपी की जो President. जो प्रेसिडेंट हो बन सकता है कि नहीं बन सकता। इतना मैं, आप देखिए मैं इतना आसामी सीख चुकी हूँ, सोचिए, क्योंकि वो थोड़ा बंगाली से मिलता जुलता है। मैं बोलूँगी जो बीजेपी की प्रेसिडेंट बनते हुए वो मुझे इतनी जल्दी नहीं, और बीजेपी की जो हॉरोस्कोप, बीजेपी की भी हॉरोस्कोप होती है, उसमें मुझे इतनी जल्दी ये सब चीज़ें, हाँ आगे जाके वो होम मिनिस्ट्री ज़रूर ले सकते हैं, ये भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी नहीं। पर ये एक चीज़, यू नो हाउ आई एम सेइंग दैट, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को टैकल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मर्क्यूरी और राहु के साथ होना चाहिए। कि राहु ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सज्जन इंसान हो, तो हमारे देश में जो इतने एंटी लोग हैं, है ना, एंटी नेशनल लोग से, उसको आप कैसे हैंडल करोगे? जैसे अमित शाह जी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड है, बहुत बुद्धि है उनका, चाणक्य बताया जाता है उनको। तो अगर बोलते हैं कि चाणक्य नंबर 2 कोई है इंडिया में इन पॉलिटिक्स, आई विल से दिस इज हेमंत बिश्व शर्मा। सो ही हैज डेफिनेटली द चांस टू बी द होम मिनिस्टर अहेड इन फ्यूचर। अब कब, वो तो थोड़ा देखना है, इतनी जल्दी तो नहीं है। আপোনালোকৰে মনৰ, আমাৰ সকলোৰে মনৰ এটা কুৱেশ্যন মই কৰিব বিচাৰোঁ। ইট ইজ এ কুৱেশ্যন ফ্ৰম এভৰিবডিজ হাৰ্ট। আই থিংক এভৰিবডিজ হাৰ্ট এ কুৱেশ্যন ইজ দেয়াৰ। ইউ অলৱেজ প্ৰেডিক্ট এবাউট ষ্টক মাৰ্কেট অলছ', দ্য প্ৰাইজ অফ দ্য gold and silver also. If one astrologer can predict stock market, why astrologers are not billionaires? Oh, this is one question I always keep on having. हमेशा मेरी ट्विटर पे इधर उधर लोग लिखते हैं कि मैम आप अगर दिख तो रहा है आपकी सारी चीज़ें सही हो रही है, पर तो फिर आप बिलियनर्स क्यों नहीं है? इट्स बिकॉज कि एवरीवन इज डेस्टिन्ड फॉर समथिंग। आप इतना अच्छा रिपोर्टिंग करते हो, सब कुछ करते हो सकता है कि आपकी रिपोर्टिंग से सब कुछ चल रहा है। तो जैसे नविका कुमार है, जैसे अंजना ओम कश्यप, इतने बड़े बड़े क्या है, उनके अपने चैनल थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रही है। सो सिमिलरली एवरीवन इज नॉट मेड टू अर्न इन एवरी वे। मेरी अर्न करने की जो चीज़ है लोगों को गाइड करके है, राइट?
मेरा काम है गाइड का, तो मेरी अर्निंग सोर्स गाइडेंस से होना है, मेरी अर्निंग सोर्स पैसे से पैसे लगा के नहीं होना है, राइट। सो मे बी इट विल बी देयर, मैंने थोड़ा बहुत कमा लिया पर उतना नहीं कमाऊंगी जो इंसान उसके लिए बना हुआ है कि हाँ वो पैसे से पैसे लगा के कमा सकता है। सो एवरीवन इज डेस्टिन्ड फॉर वेरी डिफरेंट थिंग। Okay, a similar question. I'll come back Yeah, to yeah, of you. course. Similar question. When I was News Live was a very young. That time, it was after few months of inception. There was a big news here. That is a accident in Haju. One मतलब वो जो शादी के लिए जा रहा था एक अच्छा, बस, बारात, शादी का बारात का एक वो एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्वेश्चन है वो उस दिन से लेके मुझे वो ब्राह्मण फैमिली था एक। अच्छा। व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वेडिंग और मैरिज, सो यू ऑलवेज कुंडली मिला के चलते हैं, आप वो मुहूर्त देख के चलते हैं, सब कुछ देखते चलते हैं, लेकिन इतना शुभ मुहूर्त में निकलने के बाद भी एक्सीडेंट क्यों हुआ, डिवोर्स क्यों होता है, ये बात मेरे माइंड में आता है, मुझे लगता है सबके माइंड में आएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछते हैं लोग, और ये अच्छा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ऑडियंस के लिए भी होगा कि अगर कुंडली मिलन ही हो रही है तो, और एटलीस्ट इंडिया में तो लगभग हर कोई कुंडली मिला के शादी करता है, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना। उसके बाद भी इंडिया की तो डिवोर्स रेट में कोई कमी आ नहीं रही है। एंड व्हाई इट इज सो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं, लोग गुण मिलाते हैं। गुण मिलाने के लिए आपको चंद्रमा का नक्षत्र और पदा देखना होता है, लड़के का नक्षत्र और पदा, लड़की का नक्षत्र पदा, समझ में आ जाता है कि हाँ कितना मिला है, 36 में कितना गुण मिला है। ओके, 36 में अगर 18 से अबव हो जाती है तो लोग बोलते हैं वाओ, मोर देन 50%, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड मैच। और पंडित जी बोलते हैं सब ठीक है, ठीक है। पंडित जी को थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दक्षिणा देते हैं, और पंडित जी आपको सही बोलते हैं, एंड यू बी सो हैप्पी यू कम होम। एक्चुअली कुंडली मिलन ये नहीं है, सो मेनी थिंग्स टू चेक ऑन दैट। आपको देखना है कि आपकी लग्न क्या है, लड़की की लग्न क्या है, आपकी जो जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, लड़की की वहाँ पे शनि तो नहीं बैठा हुआ है, जहाँ पे आपका चंद्रमा है वहाँ पे उस लड़की की मंगल तो नहीं बैठा हुआ है, तो दोनों में इतनी वायलेंट होगी, मतलब शादी के बाद हो सकता है वायलेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो जो एक क्या बताओ, बहुत ही चालू एक तरीका जो आ गई है ना अभी बाजार में, क्योंकि सबको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, पर सॉफ्टवेयर आने की वजह से मार्केट में एक चीज हो गया है कि आप गुण देख लेते हो कि उतना दोनों की डिटेल्स डाल देते हो, 16 गुण मिल गया है, ऐसे बोलते हैं। 36 का 36 गुण, 36 आउट ऑफ 36। तो ऐसा तो नहीं होता 30 हो जाती है, 32 होती है, 34 होता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सब ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैच मेकिंग, हॉरोस्कोप मैचिंग जिसको कहते हैं, दिस इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी माइन्यूट, बहुत इलेबोरेटिव वर्क है, मतलब बहुत टाइम लगती है उसको ठीक करने में, बहुत टाइम लगती है उसको चेक करने में, दोनों को चेक करने में। आपकी इंडिविजुअल चार्ट पहले बताता है कि आपकी शादी टिकने वाली है, नहीं टिकने वाली है। अगर आपकी नसीब में, आपके भाग्य में आपकी शादी नहीं चलने वाली है तो ऑब्वियसली आप किसी से भी शादी करने जाओगे वो चीज़ वैसे ही रहेगा, और आप ऐसे ही लड़की को अट्रैक्ट करके लाओगे जिसकी भी नसीब में शादी उतनी चलने वाली नहीं है। सो हाउ यू आर गोना मैनेज दिस वन कि हाँ भाई गुण मिल गया इस वजह से अब मेरी शादी चलेगी, नो वे। सो दिस इज इट्स ए वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द मार्केट। जो गुण मिलाते हैं वो कुंडली नहीं मिलाते हैं, वो गुण मिलाते हैं, जो 2 मिनट का काम है। आप भी आपके लिए कुंडली मिला सकते, मतलब गुण मिला सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के, एंड दैट्स हाउ। इसीलिए सारे गड़बड़ हो रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म, तो एक ज्योतिष के नाते आप क्या मानती है, क्या है आपका नजरिया? भाग्य आपके कर्मों से ही बनता है। आपने इस जन्म में अपना ब्लड डोनेट किया हर महीने में, यही आपके आगे का भाग्य बन के आएगा, क्योंकि आपने यहाँ भी जो ये अच्छा कर्म किया है, सी यू हैव डन ए वेरी गुड कर्म। और जब हम कर्म कहते हैं कि अच्छा कर्म कमाया है, धर्म कमाना, कर्म कमाना, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। किसी ने धर्म कमा के आया, कोई कर्म कमा के आया। सो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे, जैसे दुबई में शेख लोग हैं, राइट, दे आर मुस्लिम्स, दे आर एवरीथिंग, एंड बट दे आर सुपर रिच। सो वो इंसान पिछले जन्म में बहुत कुछ कमा के आया है, बहुत कर्म कमा के आया है। उसने हो सकता है अपने मतलब अपने बॉडी के लास्ट खून तक लोगों को दे के आया है। यू हैव नो आइडिया व्हाट दे हैव डन, जिस वजह से दे आर इन वन पोजीशन वेयर दे आर हैविंग ऑल द मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। समझ में आया? तो आपके भाग्य आपके ही कर्म से बनता जाता है। अब इस लाइफ में आपके कर्म ज़्यादा बड़ा है कि आपके भाग्य ज़्यादा बड़ा है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के होते हैं कि उनके दृढ़ कर्म जो है, उनके फिक्स कर्मा
इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं दृढ़ होती है कुछ कर्मा, उसको आप एकदम ही चेंज नहीं कर पाते, तो वो जो भाग्य में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और कुछ लोगों की जो है कर्म फ्लेक्सिबल होती है, अदृढ़ कर्म भी होती है, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर पाते हैं, जो हम कहते हैं फ्री विल, उनके लिए फ्री विल काम करता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। So we are going for a quick break, जी। but before that we'll take one question. নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে অসমৰ বিৰোধীৰ যদি আমি জনপ্ৰিয় কোনোবা এটা চৰিত্ৰ লওঁ, সেইটো হৈছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু আমি ভৱিষ্যতে গৌৰৱ গগৈ কোনো শাসকীয় দলৰ মুখ্য ছবি হিচাপত আমি দেখিম নেকি? মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো। There is a, you may know the Gaurav Gogoi. He is the deputy Congress के प्रदेश अध्यक्ष। deputy leader of opposition in parliament. So he wants to know what is the political future of Gaurav Gogoi in Assam. Will he be the chief minister one day? Have you seen his? नो अब जब 15 साल ये बीजेपी रहने वाली है यहाँ पे, मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन तो आती ही नहीं है। और हम एक क्वेश्चन किया था, आंसर हम लोग अभी नहीं मिला। आफ्टर ब्रेक विल टेक दोज क्वेश्चंस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भद्रा के बारे में कुछ, और এটা সৰু বিৰতিলৈ যাম। বিৰতিৰ পৰা উভতি আহি আমি শেষ অংশলৈ যাম। কেইবাটাও কুৱেশ্যন যদি আছে আমি ল'ম। আৰু উই আৰ টকিং এবাউট পলিটিক্স, टॉकिंग अबाउट, एंड यू हैव प्रेडिक्टेड सो मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑल्सो। इंडिया का बारे में बहुत आपने प्रेडिक्ट किया है पहले स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स को कैसे आप लोग वो करते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करने का वो? स्पोर्ट्स को प्रेडिक्ट करना या कुछ भी चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके नक्षत्र का जो नॉलेज है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नक्षत्र और प्लैनेट्स का नॉलेज, जैसे कि अभी मंगल का महादशा शुरू हुआ है भारत का। जब से भारत का मंगल का महादशा शुरू है 2025 के सितंबर से, तब हमने देखा है कि हम जहाँ हम लोगों को भेज रहे अलग इवेंट्स में खेलने के लिए। हमारी विमेंस वर्ल्ड कप वो T20 जो है वो भी हमने जीत लिया। कल तो हमने यहाँ पे T20 मेंस T20 वो भी जीत लिया। वहाँ पे हॉकी में हमने हॉकी में भी हमारी जीत हुई कल रात को ही। और जो लक्ष्य सेन है उनको सिल्वर मेडल मिला है, और सिल्वर मेडल नहीं, खाली फर्स्ट राउंड में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। सो ये जो स्पोर्ट्स में हमारी अचानक डेवलपमेंट हो गई है, दिस इज बिकॉज ऑफ मंगल दशा। मंगल इज स्पोर्टी, मंगल इज फॉर स्पीड, मंगल इज फॉर एनर्जी। सो जब इसी मंगल का महादशा शुरू हुआ है भारत का और 7 साल चलेगा, तो हम देखेंगे कि हम जहाँ पे इस लेवल पे थे यहाँ पे आने वाले हैं। हमारी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन, इन तीनों में हम बढ़िया करेंगे आने वाले 7 साल। From this book, I have taken one small prediction of yours. 7th March 2026 में भारत माने 2032 तक भारत will be हिंदू राष्ट्र during मंगल महादशा of एंड ऑफ द मंगल महादशा। ट्रू। आई मीन ये तो रिटन है ना, मैं उससे पब्लिश ये बुक मुमकिन है। हो पाएगा? हाँ जी, भारत will be मुमकिन हिंदू हो पाएगा राष्ट्र। इन हालातों में? मुमकिन होगा तभी लिखा है, अगर नहीं होगा तो आप लोग मेरे पीछे पड़ेंगे कि कुछ भी बोलती है, एस्ट्रोलॉजी फेक है। एट दैट टाइम आप लोग ये बताएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी फेक ना हो ऐसे ही सोच के मैं लिखूंगी। सो भारत इज गोइंग टू बी हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत में जो नेपाल का आपने पीओके का भी जिक्र किया। हाँ, किया था। पीओके भी आएगा पीओके हमारे तो पास। चलो वो तो सबको पता है कि पीओके आना ही है, पीओके लाना है, क्योंकि पीओके हमारा ही हिस्सा है, राइट। और पीओके नाम ही है उसका, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भारत पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ उलझना होता ही रहेगा, हम पीओके लाएंगे। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, एवरीवन नोज। मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए सारे ऑडियंस को भी पता है भाई पीओके हमारा, हमें लाना है। पर जो ये मैं कह रही हूँ नेपाल को हमारे अंदर आना है। जो आप कह रहे थे कि मंगल के दशा में क्या हमारा एजुकेशन अच्छा होगा, मंगल के दशा में एजुकेशन नहीं होता है, क्लीनिंग करता है, भूमि का एक्सपेंशन करता है। बिकॉज मंगल जो है भूमि कारक है, मंगल योद्धा है, भूमि कारक है, भूमिपुत्र है। सो हम जो लैंड से रिलेटेड जो भी कुछ है, लैंड की हमारी जो प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत अच्छी चलान आएगी। अब देखो दुबई में जिन लोगों को पैसे लगाने थे वो नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, है कि नहीं? सो ये सारी चीज चलती रहेगी। सो आपने जो सवाल पूछा है, भारत हिंदू राष्ट्र ये ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाएगा 2032 के आसपास, मतलब एंड ऑफ मंगल महादशा। আকৌ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে আই এম coming to Assamese audience in Assamese. 2032 চনৰ শেষৰ ফালে মংগলৰ মহাদশা সময়ত ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব বুলি এষ্ট্ৰ
শৰ্মিষ্ঠাই এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে হেতু মই আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু এটা কথা অথনি মই অসমীয়াত কথাখিনি নকলো তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈছো 2045 পৰা 47 লৈকে কিন্তু মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰেই সৰকাৰ ভাৰতত থাকিব বুলিও তেখেতে এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে আৰু Hello, ma'am. If we see the scenario, global scenario, you said about Nepal. How you see the Nepal future? Its leadership is with the Gen Z generation. Yes. We talk about youth-led government, youth-led nation. How you see Nepal future? And you talk about Nepal is in future maybe with India. So I like to know your prediction about it. When I say that Nepal will be actually incorporated in our map, हमारे मैप में घुसने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनका फ्यूचर क्या है वो तो हमें दिख रहा है और जब तक नहीं आने वाले जो 2032-33 तक तब तक जो है नेपाल में अभी तो उनके नया पीएम चूज किया गया है सो एंड ही इज गोइंग टू बी नॉट सो मैच्योर आई नो दैट बट ही इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन ये तो आप लोग को दिखेगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ एक्स रैपर है ये वो है अंडरस्टूड पर वो जेलेंस्की जैसा नहीं रहेंगे जो कॉमेडी करके हुआ आए थे या फिर हमारे जो पंजाब में बैठे हुए सेम जैसा नहीं होंगे ही इज गोइंग टू बी बेटर देन दैट और वो बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो फाइनली ऑब्वियसली उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन इन द लॉन्ग रन बहुत सही नहीं चलेगा सो ही they are going to get along with us. अहमदाबाद का the plane crash, London. ये आप 1 week before the crash you predicted about that. आपको पता लग गया कि वो बुरा होने वाला है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते गिल्ट फील होता है कुछ देखिए एस्ट्रोलॉजी में 17 साल हो गई है ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स तो शुरू में ये सब लगता था कि अरे यार कुछ तो हो रहा है अभी मैं क्या कर सकती हूँ बट जब आप एस्ट्रोलॉजी में बड़े मेच्योर एस्ट्रोलॉजर बनते हो तो आपको ही समझ में आता है आप अपने कर्मों को आप चेंज नहीं कर सकते हो तो वहाँ प्लेन क्रैश हो कि दुनिया बहस तहस नहस हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कर्म के ऊपर प्रारब्ध के ऊपर पूर्व जन्म के कर्म का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं प्रारब्ध के ऊपर किसी का आप जैसे मुझे अगर पता हो कल मेरा सर्जरी होना है मैं उसका कुछ कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ थोड़ा बहुत हो सकता है सो एक्सेप्टेंस हाँ लेकिन हम लोग फ्यूचर क्यों जानना चाहते हैं इसीलिए कि हम लोग कुछ रेमेडी ले सके यस आप फ्यूचर जानना चाहते हैं आप रेमेडी करना मतलब ताकि आप उससे बच पाए आई मीन सोल्यूशन ढूंढने के लिए हर चीज़ की रेमेडी नहीं होती है अगर फ्यूचर जान के आप हर चीज़ बदल सकते थे तब तो मैं क्या ही बताऊँ इसका क्या कर सकता हूँ जैसे अभी पता है कल बारिश होगा आप बारिश को रुक सकते हैं नहीं आप रेमेडी इतना ही कर सकते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा छतरी लेके जाऊंगी या फिर उस दिन बाहर ही नहीं निकलूंगा पर अगर इतने ही बारिश हो गया आपके घर तक पानी आ गया उसमें भी आप बच नहीं सकते सो फ्यू थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल जो आपकी विधि का विधान है मतलब आपकी भाग्य में है आपकी डेस्टिनी में है दिस इज समथिंग यू कैन नॉट उसको कहते हैं दृढ़ कर्म मतलब फिक्स कर्म का रिजल्ट ऐसा कुछ करके आए हैं जो फिक्स है उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में अच्छा है वो भी लेना है खराब है वो भी लेना है उससे आप बच नहीं सकते हो यानी जेमस्टोन्स काम नहीं कर सकते नहीं why we spend so much of money on those gemstones अब कुछ काम करता है वो उसमें काम करता है लेट मी गिव यू वन एग्जांपल एक्चुअली जैसे अदृढ़ कर्म में काम करता है जैसे एक बच्चा वो अंधा पैदा हुआ जब वो अंधा पैदा हुआ 17-18 साल गया है मेडिकल साइंस जो है उसने बड़ा तरक्की किया है राइट टेक्नोलॉजी तरक्की किया है उसके घर वालों ने अच्छी पैसे वैसे थोड़ी सी उनकी फाइनेंशियल थोड़ी सी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बाद जो है उन लोगों ने ऑपरेशन की तरफ गए हैं एंड द पर्सन स्टार्टेड हैविंग आईसाइट तो जो 18 साल 19 साल उसने बिताया दैट्स द बैड कर्माफल ही हैज टेकन आपको कर्म लिया उसके बाद रेमेडी काम किया सो वहाँ थोड़ा बहुत जेमस्टोन ये वो जो छोटे आपके कर्म फल उसमें आपको स्ट्रेंथ देते हैं आपको सोचने की तरीका बदलता है वो सब चीज़ों पे होता है अदरवाइज जेमस्टोन पहन के अगर सब कुछ चेंज हो जाता तो मैं क्या बताती तब तो हर कोई यही करते हैं again coming to our friends মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বহু জনপ্ৰতিনিধি বা ৰাজনৈতিক নেতাক ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে জ্যোতিষীৰ ওচৰ চপা দেখা যায় এইটো ৰাজনৈতিক এইটো কিমান যুক্তিসংগতা So all the political leaders or who wants to go into the politics they always goes to a astrologer to know the he should go into it or not or what should he
do any political decision, they goes to astrologer. ओह हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि वो लोग कुछ भी बड़ी चीज़ें लेने से पहले गाइडेंस लेने जाते हैं। हाँ, छोटे मोटे चीज़ों के लिए आपको हर बार एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट पॉलिटिक्स, यू आर इन एनी वेयर इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की कोई भी क्षेत्र में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप बहुत अच्छे जॉब में हैं, आप छोड़ के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी डिसीजन है। तब एक बार अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास, खाली एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं, जो वो गुण मिला के बता देते हैं कि आपकी शादी एकदम करेक्ट है, आप चले जाते हो डिवोर्स हो जाते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं। आप कुछ जब बहुत जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, सो दे कैन एक्चुअली गाइड यू कि हाँ आपको ये जो चीज़ें हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा, कि अभी करना है कि कभी करना है, ये भी तो एक बात है ना। और पॉलिटिशियंस थोड़ी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उनके डिसीजन के ऊपर बहुत सारे आम जनता की लाइफ डिपेंड करता है। सो दे थिंक दैट कि भाई क्यों चांस लेना है, एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से क्या ही जा रहा है, चांद में तो नहीं जाना है ना, एक एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना है। सो दैट्स व्हाई दे डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। और आरो कुनवा Already we have discussed about the socio-political scenario of Assam as well as India, but I want to know that we all know that youth is the one of the most influential factor for the development of a nation or a state. Although Assam is rising, but there are various problems related to the youth of Assam. So I want to know that how can you see the future condition for the future situation of the youth of Assam? आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2027 का जो एक हिंदू नववर्ष शुरू होगा, इस साल हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है 19 मार्च से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, विक्रम संवत 2083। 2027 में जो होगा दैट इज गोइंग टू बी विक्रम संवत 2084। वहाँ पे जो है ना बुध राजा बुध मंत्री, इट्स वेरी रेयर, मुझे नहीं पता है पिछले 200-300 सालों में भी बुध राजा बुध मंत्री, मतलब बुध को ही दोनों मिनिस्ट्री मिली है, ऐसा तो मुझे तो कुछ पता नहीं। 200 साल में तो एटलीस्ट नहीं, आप पता नहीं 500,000 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सो व्हेन बुध इज फॉर यूथ, बुध इज फॉर योर इंटेलिजेंस, जो यंग माइंड, यंग फ्रेश माइंड, यंग माइंड एंड आइडियाज, फ्रेश आइडियाज, ये सब चीज़ों को यूथ जिसको बोलते हैं, ये बुध उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर खाली आसाम नहीं, पूरे इंडिया का जो यूथ जनरेशन है उनमें बहुत बढ़िया एक उनकी यूटिलाइजेशन, उनकी तरक्की, उनकी प्रोग्रेस, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ है उसमें बहुत बढ़िया काम होगा। आई थिंक दैट सो ऑब्वियसली द फ्यूचर इज ब्राइट। মেম মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে প্ৰতি বছৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আঞ্চলিকতাবাদে গা কৰি উঠে। 2026 বৰ্ষৰ পিছত অসমত আঞ্চলিকতাৰ উত্থান হ'বনে পতন হ'ব পাৰে? Regionalism. Have you seen any future of regionalism in Assam politics? Regional parties means अच्छा। growth of regional parties. रीजनल पार्टी अभी 2026 में तो 27 में तो ऐसा कुछ चीज़ें मुझे एकदम नहीं लग रहा है, आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है, बाहर आएंगे, बट आई डोंट सी इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, एटलीस्ट 2-3 सालों में तो मुझे ऐसा कुछ आते हुए नहीं दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स इंडिया का जो मैप है वो एकदम सेफ्रोनाइज्ड ही होने वाली है ऑलमोस्ट। ओके कुछ खास मैम, नहीं। हम लोग का टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है जी। आपका एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्योंकि आपका भी जर्नी बहुत ग्लोरियस है, क्योंकि आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हो ना, तो वहाँ से एस्ट्रोलॉजी तक का सफ़र कैसा रहा, मतलब क्यों डिसाइड किया डॉक्टर इंजीनियर आके एस्ट्रोलॉजर बन गया? ये अच्छी बात है, मैंने एक क्या बोलते हैं अच्छी एक क्या मैंने स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे जो कुछ कर नहीं पाता है लाइफ में, ऐसे ऐसे भटक रहा था तो फिर एस्ट्रोलॉजर बन गया है। मैं एस्ट्रोलॉजर बनी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं गई थी, मैं गई थी एस्ट्रोलॉजी कॉलेज में, इसलिए गई थी क्योंकि मैं भारतीय विद्या भवन में मैंने जाके एस्ट्रोलॉजी सीखा है। इट्स दे हैव द सिस्टमेटिक स्टडी ईयर बाय ईयर, ज्योतिर्विशारद, सो 5 years कोर्स है वहाँ पे। तो मैं एक्चुअली जाती थी एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे आप सब लोग जाते हैं कि कुछ ना कुछ जानने, बड़ी इंक्विजिटिव होता है हर के, ये बेसिक ह्यूमन एक टेंडेंसी है सबको अपने बारे में जानने का। सो मैं भी जाती थी एस्ट्रोलॉजर के पास, जाते हो तो फिर वही घुमा फिरा के जवाब देते हैं, डायरेक्ट कोई जवाब नहीं आता है, प्रिसाइज कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये सब होते होते एक दिन मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई कि नहीं मैं ही सीखूंगी,
whatever he says, इसी हॉरोस्कोप से तो बताते हैं ना, अपने मन से तो कुछ नहीं. तो I will learn how to decode this one. तो किसी से प्रेरित होकर नहीं, अपनी जिज्ञासा की वजह से आपने सीखा. यस और आप कह सकते हो इंस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेशन या जो भी वो पिस्ड ऑफ होके जो ये बाजार में जो चालू एस्ट्रोलॉजर है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्हीं की वजह से मैंने कहा एक दिन मैं ही सीख लूंगी. पर आप कहते ही तो शुरू नहीं होता है, इट टेक्स ऑल्सो टाइम. तो ऐसे बहुत दिन चला गया. तो मुंबई में फिर मैंने पता किया एस्ट्रोलॉजी कॉलेज है. सो आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड मेथोडिकल स्टडी ऑफ ईयर बाय ईयर एज आई सेड. तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी की कॉलेज है. सो आई स्टार्टेड देयर. और जब मैंने शुरू किया था बस मुझे सीखना है, जानना है उसी तरीके से. एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड गोइंग ऑन एंड ऑन, आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग आई कैन डू 24/7. बस. एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप छोड़ दिया, मतलब घर से कोई चैलेंजेस नहीं है? वो सब चीज़ें नहीं है. बात यह है कि आप जिस चीज़ पे अच्छा हो, योर डेस्टिन पाथ. लोग मेरे पास क्यों आएंगे, यही तो जानने कि मैं किस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ. बहुत सारे डॉक्टर हैं जो फिर डॉक्टरी वगैरह कुछ नहीं कर रहे, वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे. हाउ इट इज़ वर्किंग, है ना. ये सारे बहुत ज़रा देखना पड़ता है. आप जैसे हेमंत विश्व जी, वो क्या थे, क्या है. अब केजरीवाल जी, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो भी तो IIT से है, वो भी तो क्या बोलते हैं उसको, IRS बने थे, कहाँ से कहाँ चले गए. सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, जो आखिरी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है. मेरा आखिरी सवाल है आपसे. आपने शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर रखे हैं. शेयर मार्केट पे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा? शेयर मार्केट में invest स्टॉक्स करें में आप? इन्वेस्ट करना चाहिए. नहीं, गोल्ड सिल्वर, जैसे कि दैट सिल्वर. इज कमोडिटी. जी. गोल्ड तो देखिए, गोल्ड सिल्वर थोड़ा हमेशा ही क्या होती है, एक सेफ जोन होती है. हर कोई इंसान को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, ट्रेडर नहीं है. ट्रेडर को सालों साल से उसकी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई लिखाई होती है उसके ऊपर, बहुत एक्सपीरियंस होती है. दोज पीपल जैसे घर में बैठे वाले बहुत हाउस वाइफ है, बहुत कुछ है, उनको कुछ समझ नहीं है, पैसे थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं जो भी अपने पास में है, बिकॉज आज नाउअडेज एवरी इज नॉट गिविंग एनीथिंग. तो वो सोचते हैं कि थोड़ा गोल्ड ले लेते हैं. आजकल तो डिजिटल गोल्ड आ गया, ETF, दैट ऑल्सो यू कैन टेक वट एवर द अमाउंट यू वांट. सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए. तो गोल्ड इज़ अ वेरी सेफ बैट. एंड गोल्ड इज द मेटल ऑफ 2026, क्योंकि अप्रैल के आसपास से गोल्ड बहुत तेजी से भागेगा आगे, बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई नया बनाने वाला है और बहुत स्पीडली आगे बढ़ने वाला है. सो गोल्ड इज सेफ और वेरी सेफ एंड गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 2026. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारा क्वेश्चंस था, लेकिन समय थोड़ा खत्म हो रहा है. लेकिन উই আৰ মে বি আমি চাগে আমি বহুখিনি এনেকুৱা যিখিনি কথা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ বা জনাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, এগৰাকী বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ জ্যোতিৰ্বিদ বা জ্যোতিষীৰ পৰা আমি সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ. আৰু আমি লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, ইন ইণ্ডিয়া গান্ধী ফেমিলি অলৱেজ দ্য টপিক to discuss, always topic to people always wants to know what will be the future of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. You have already predicted. I just predict something on our for camera your also. channel, for your region. Understood this one. राहुल गांधी का जो है ना, उनका जब बुध का अंतर्दशा आएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत एक्टिव तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में रहने वाले हैं. सो 2029 जब तक नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन कंटेस्ट ही करेंगे. वो बहुत बड़ी बात, मुझे नहीं लगता है वो कंटेस्ट वगैरह वैसा कुछ कर पाएंगे. सो PM बनना, PM कैंडिडेट, वो सब तो दूर दूर की बात है. 2027 को क्रॉस करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. सो हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू बी इन इंडियन पॉलिटिक्स, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. राजनीति से दूर हो जाएंगे, ऐसी मतलब संभावना है. आप जैसे आप केजरीवाल भी तो कुछ दिन हिबरनेशन मोड में थे, है ही नहीं लगभग. तो उसी टाइप का कुछ, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी मच. और प्रियंका गांधी का भी ऐसा कुछ पढ़ा. प्रियंका गांधी के लिए ये जो साल है 2026, दैट इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि उनका कुछ गुरु का अंतर्दशा शुरू होने वाला है. और गुरु जो है उनका 10th का मालिक 5th में बैठा हुआ है, अच्छी आमशा में है. सो दैट इज गोइंग टू एक्चुअली गिव ए गुड थिंग्स फॉर हिम, फॉर हर, सॉरी. एंड तो वो इस साल थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ सकता है. पर जाते जाते भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम शी कैन बी द CM ऑफ एनी स्टेट. उससे ज़्यादा मुझे प्रियंका गांधी के लिए खास कुछ नहीं दिखता है. सो दैट्स हाउ इट इज़. Yes. Thank you very much. It's indeed a great pleasure to talking to you, and we are hoping, looking forward, सब अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, मैनकाइंड के लिए अच्छा हो, पूरी यूनिवर्स के लिए, हम लोग का वर्ल्ड के लिए, सब जो अच्छा हम लोग अच्छा करने से अच्छा होगा, यही सबका है.
आपने बताई है कर्म ही धर्म है, और इंडिया का जो फिलॉसफी है, इंडिया का जो स्पिरिचुअलिज्म है, एवरीवेयर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को कभी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एवरीथिंग शुड हैव द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड साइंटिफिक वे से सब सॉल्व कर सकता है। आपके जैसे साइंटिफिकली लोगों को जो आप लोग समझाते हैं, मुझे मोर एनुका माने आशा करिছোঁ যে সকলো উপকৃত হওক, নতুন জেনেৰেশ্যনো উপকৃত হওক। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ। এণ্ড এইখিনিতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।